ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन, यस, ओके फाइन. So let's start with some previous year problem based on Creeper. Gate questions on Clippers. We want to try some gate problems on Clipper. So let's start. The question is, a circuit is given. This is Vi. $10 volt, 2 ohm. This is D1. This is D2. This is 5. And this represents the output across this clipper. So draw the transfer characteristics. है ना, क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों के बीच का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, है ना, शेप ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. Shape of transfer characteristics. And D1, D2 are ideal diode. What is given? D1 and D2 ideal diodes. Try this question. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद क्लैंपर पे बढ़ेंगे.
Okay, let's start with this problem. What I can say, in this circuit दो डायोड आपको दिए हैं, ध्यान से देखें, गुड क्वेश्चन। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डायोड। सो लेट्स replace this by open circuit. So this terminal can be represented as Vp and this terminal can be represented as Vn, and we can replace the second terminal also. This is Vn and this is Vp. We have two diodes in the circuit जिनका नाम लिख सकता हूं मैं Vp1, Vn1, Vn2, Vp2, ये इनके नाम है। What is the idea for diode conduction? The diode will conduct if open circuit potential across diode Vp minus Vn is greater than 0. If Vp minus Vn open circuited potential is greater than 0. So I can say this line is available at Vi and इस पूरे सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा बिकॉज नो क्लोज लूप। यहां से देखें कि यहां करंट नहीं फ्लो हो सकता, यहां से ओपन लूप ओपन है और there is no current in this loop also because it is open from here. So can I say the potential drop across every passive element is equivalent to 0 volt. अगर सारे पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस करंट 0 है, so I can say Vn1, Vp1 is Vi. Because of this Vn1 is equivalent to 10 volt. Because of this जो potential यहाँ होगा 10 volt and 0 volt drop is 10 volt. Now we are interested in Vn2 and Vn2 is what? Again Vn2 is 10 volt. Because of this line is short circuited and Vp2 is 5 volt. Can I say the first diode will conduct if Vi minus 10 is greater than 0 and second diode will conduct if Vp2 माइनस Vn2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, ये तो लेस देन 0 है। सो व्हाट आई कैन से Vi ग्रेटर देन 0 पहला डायोड कंडक्ट करेगा। अब आप देखें कि व्हाट इज कंडीशन एट Vi लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या कंडीशन बनता है उसको देखते हैं हम। Vi greater than 0 at Vi greater than 0 when this diode will conduct, जब ये डायोड कंडक्ट करेगा, है ना। देखो पहले इसी केस के लिए आउटपुट लिख देता हूं। जब पहला डायोड कंडक्ट करेगा तो देयर इज ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, बीच वाली दोनों ब्रांचेस से कोई लेना देना नहीं है। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट फॉर वी आई ग्रेटर देन 10। वी आई का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुआ तो वी आउटपुट मीन्स दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इनपुट। बीच में कुछ भी लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। But whenever Vi is less than 0, this diode is open circuited one. If this diode is open circuited one, there is no current in the circuit क्योंकि D2 तो हमेशा ही ऑफ है। 5 minus 10 is a negative number, so ये डायोड तो हमेशा ही ऑफ है। तो आउटपुट कितना मिल जाएगा आपको? इट्स अ 10 वोल्ट। आउटपुट किसकी वजह से मिलेगा? बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, और इसका तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, सो इट्स अ 10 वोल्ट। सो आई कैन ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी? If this represents Vi, if this represents Vo, so what I can say ki the decision boundary is 10 volt. So let me take 10 volt as a decision boundary.
So before 10 volt, V output is equivalent to V input. Okay. Before 10 volt, before 10 volt, output is also 10 volt. And after 10 volt, V output is equivalent to V input. Means अगर मेरे पास V input का वैल्यू 10 वोल्ट से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये भी इसको फॉलो करेगा. So this is the reason where V output is equivalent to 10. And in which reason? When V input is less than or equal to 10. और लेस देन और इक्वल टू यूज कर सकते हो बिकॉज दिस पॉइंट इज कंटिन्यूअस पॉइंट है ना. देखो 10 पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. 10 लेस देन और इक्वल टू 10, वी आई लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और वी आई लेस देन और इक्वल टू 10, दोनों पे वैल्यू 10 ही है. एंड फॉर दिस रीजन what we can say, V output is equivalent to V input. I hope this is clear. ये आपको समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट इसमें? बोलें जल्दी से. नो डाउट. ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना. तो थोड़ा अप्रोच करें क्वेश्चन को, कंसेप्चुअली अप्रोच करके बनाने की कोशिश करें ना. लेट्स ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लिपर. क्लिपर से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है एंड इट्स वेरी सिंपल सर्किट्स. बेसिक केवीएल केसीएल का यूज होता है. ओके, लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम and try to solve this. I have this circuit. Okay. The circuit is this. Gate 2003. This is the problem. V input, a 10 kilo ohm resistance, then a diode, then again a 10 kilo ohm resistance. The battery is 4 volt battery. Then this is a 4 volt battery. We are taking output across this. क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द मैक्सिमम इफ इनपुट इज, if Vi is 10 sine of omega t, if input is 10 sine of omega t, so what is maximum and minimum value of output voltage? Maximum and minimum value of output voltage, and these are the answers. 10 minus 10, 4 minus 4, 7 minus 4, and 4 minus 7. These are 4 options. Try this question.
D1 and D2 are ideal diodes. D1 and D2 are ideal diodes. Try this question. जल्दी करें भाई. Okay, C option is correct. कुछ लोगों का जवाब आया है मेरे पास. The option C is correct. Yash. Okay, let's try this. What I am saying, just replace this diodes by open circuit and write this is a Vn, this is a Vp. Replace second diode by open circuit and write Vp and Vn. Vp2, Vn2. So what I am saying, there is no closed loop in the circuit, और सर्किट में अगर कोई closed loop नहीं होगा तो potential drop across every passive element is equivalent to 0. ये भी potential drop 0, ये भी potential drop 0. So you can say Vn1 is Vi. This whole line is available at Vi potential, and Vp1 at minus 4 volt. Minus 4 volt. ये दोनों इस पोटेंशियल पे अवेलेबल है. And what about Vp2? You can say Vp2 is available at Vi and Vn2 is available at 4 volt. These two are conditions for diode. So पहले डायोड के ऑन होने की कंडीशन क्या होगी? माइनस 4 वोल्ट माइनस ऑफ Vi, Vp minus Vn should be greater than 0, or I can say 4 plus Vi should be less than 0, or Vi should be less than 4. अगर Vi का लेस देन माइनस 4, अगर Vi का वैल्यू लेस देन माइनस 4 हुआ तो फर्स्ट डायोड इज ऑन. व्हाट इज कंडीशन फॉर सेकेंड डायोड? Vi minus 4, Vi minus 4 should be greater than 0. Vi should be greater than 4. तो complete range of Vi, if this is complete range of Vi, 4 वोल्ट के बाद 4 वोल्ट के बाद when Vi is greater than 4, greater than or equal to 4, you can say diode D2 is on. और एक और बात देखें कि जब भी डायोड D2 ऑन होगा
no matter what this circuit is, output will be 4 volt. V output is equivalent to 4 volt. बहुत अच्छे. When Vi is less than 4, less than -4. अच्छा, -4 से +4 के बीच में दोनों डायोड ऑफ है, और दोनों डायोड अगर ऑफ है तो वी कैन से V output is equivalent to V input. V output is equivalent to V input in this duration because no potential drop across 10 किलो ओम. तो जो V output होगा वही V input होगा. नाउ उससे पहले डायोड D1 है ऑन, और डायोड D1 ऑन है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट पोटेंशियल? तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है. वी कैन अप्लाई अ केवीएल. एक क्लोज लूप बनता है, तो क्लोज लूप में आप केवीएल लगा दें, है ना. इस पॉइंट का पोटेंशियल वी आउटपुट, केवीएल और केसीएल वॉट एवर. वी आउटपुट माइनस +4 minus V output +4 divided by 10, the current in this branch, plus V output -10, sorry, V output minus V input divided by 10 equal to 0. दो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, दोनों ब्रांचेस से कनेक्टेड हैं, तो दोनों ब्रांचेस का करंट लिख लिया, और यहां तो कोई करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किटेड टर्मिनल. So what is V output? You can say this is 0. 2 times of V output is equivalent to Vi minus 4, और V output is equivalent to Vi by 2 minus 2. तो तीनों रिलेशनशिप आ गए मेरे पास. Less than 4, greater than 4, all relationships are available. So I can draw the characteristics. There are two boundaries. Vi is greater than 4. Vi is less than or equal to -4. These are two boundaries. So whenever characteristics lies greater than 4 or equal to 4, it's 4 volt. हमने देखा कि जब भी वैल्यू इसका 4 वोल्ट या 4 वोल्ट से ज्यादा होगा तो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू. अच्छा, उससे पहले की क्या कहानी है? उसके पहले की कहानी है कि V आउटपुट विल फॉलो द V इनपुट. मींस in this region V output is equivalent to V input बिटवीन -4 and 4. और उसके बाद स्लोप आधा हो जाएगा. इसका स्लोप कितना है? 1. तो स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा. कम हो जाएगा तो वी कैन से, एंड दिस इज V output is equivalent to V input divided by 2 minus 2, and this is V output equal to 4. अब आपके क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक बताई है मैंने कि यू कैन ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी सर्किट. द इनपुट इज 10 साइन ऑफ ओमेगा टी. कितना इनपुट दिया है? 10 साइन ऑफ ओमेगा टी. Vi is equivalent to 10 साइन ऑफ ओमेगा टी. आपको बताना है V output maximum and V output minimum for the circuit. So can I say V input maximum कब मिलेगा? V input maximum is 10 volt and V output minimum is -10 volt. So I can say V input maximum कब मिलेगा? V output maximum कब मिलेगा? जब इनपुट भी मैक्सिमम होगा. और इनपुट अगर 10 वोल्ट आया तो वो इस रीजन में लाई करता है, और इस रीजन में अगर यहाँ 10 वोल्ट लिखा मैंने तब आउटपुट कितना आया? 4 वोल्ट. और V इनपुट मिनिमम कितना है? V इनपुट मिनिमम इज -10 वोल्ट. -10 वोल्ट मींस इन दिस रीजन, और इस रीजन में आउटपुट कितना मिलता है आपको? आउटपुट इज V इनपुट बाई 2. सो -10 by 2 divided -2, so -5 -7. So answer for this question is maximum V output maximum is equivalent to 4 volt and V output minimum is -7 volt. This is the answer. डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बिना कैरेक्टरिस्टिक्स से, बट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताना ही था.
बोलो क्लियर है ये? हाँ जी बोलिए। ये क्लियर है, आगे बढ़ा जाए इससे। और a 2 mark question is fixed from this concept. यस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 3-4 क्वेश्चन करके फिर हम क्लैंपर सर्किट शुरू करेंगे। द एग्जांपल इज दिस, है ना। चलो एक, है ना, इसका आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। दिस इज गेट 2014। वी आई, this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is 2 volt, and this is output terminal, V output. Now Vi is 5 sine of omega t. V on means whenever diode is on, knee voltage is given as 0.7 volt, and this is constant voltage drop model, है ना। otherwise it's a ideal, इसमें दिया है V on is 0.7, otherwise it's ideal। तो आपसे पूछा है अगेन द सेम क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V आउटपुट। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V आउटपुट बताएं जरा जल्दी। V on is 0.7, ध्यान रखें। नाउ डायोड इज हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। If this represents V output, this represents V input. I Pn V input, then this is the characteristics. Below 0.7 volt, it's open circuited. After 0.7 volt, short circuited. करें इसको, ट्राई दिस क्वेश्चन।
Okay, which option is correct? Very good, very good. Yash and Parth. Good. What I can say? I can say, let's apply the test for diode. Whether this diode is conducting or not conducting. So this terminal is VP, this terminal is VN. And what we are expecting? Now, our expectation is this: VP minus VN should be greater than 0.7 volt. Okay? Now, when this diode is open, the potential drop across 1 kilo ohm and this is equivalent to 0. So, if this potential is Vi, this is also Vi, and Vi is equivalent to V output. So, I can say Vp is equivalent to Vi and Vn is equivalent to 2 volt. So what is idea for diode conduction? Vi minus 2 should be greater than 0.7 volt or Vi should be greater than 2.7. This is the condition for conducting diode. Diode D will conduct for this reason. And the another boundary is this: when Vi is less than 2.7, what I can say? Diode will not conduct. Or when diode will not conduct, we know the V input is equivalent to V output because there is no current in the circuit. यहाँ करंट का वैल्यू 0 है तो V output is equivalent to V input. तो for Vi less than 2.7, V output is equivalent to V input less than 2.7. For greater than 2.7, diode will conduct. और diode conduct करेगा तो कितना बनेगा? This whole potential is V output. So for Vi greater than 2.7, I can apply the KCL. एक करंट इस डायरेक्शन में बनेगा, एक करंट इस डायरेक्शन में बनेगा. So V output minus V input divided by 1K current in this direction and one more current is V output. और जब ये ऑन हुआ तो शॉर्ट नहीं होगा. There is a battery of 0.7, है ना, ध्यान रखें. There is a battery of 0.7 volt. तो कितना हो जाएगा? V output minus 2.7 2.7 divided by 1 equal to 0. So you can say 2 times of V output is equivalent to V input plus 2.7 or V output is equivalent to V input plus 2.7 divided by 2. ये equation बनी है आपके पास. Now what I can say, the characteristics is this. The transfer characteristics of this circuit is given by, if this is Vi, मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूं कि आप कंसेप्चुअली किसी भी सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना पाए. And this is V out. What I am saying, the decision boundary is 2.7 volt. So below 2.7 volt, V output is equivalent to V input. The first case, a straight line passing from origin. V output is equivalent to V input. तो at 2.7 वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 2.7. अच्छा, फिर यहाँ 2.7 रखा तो 2.7 प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7 इज अगेन 2.7. लेकिन इसका स्लोप कितना हो जाएगा? हाफ. तो स्लोप क्या कर दिया जाए? हाफ. एंड नाउ दिस इज V आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू V इनपुट प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय 5. अब आपसे डिवाइडेड बाय 2. अब आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. व्हेन इनपुट इज 5 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो 5 साइन ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -5. तो -5 और इस रीजन में V आउटपुट V इनपुट के इक्वल है. तो V आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू मिनिमम इज इक्विवेलेंट टू -5 एंड V मैक्सिमम कितना होगा? ये 2.7 है तो 5 में ये रिलेशनशिप ट्रू है. सो व्हाट आई कैन से, 5 प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय 2, 7.7 divided by 2 is 3.85.
तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितने होंगे? वी आउटपुट मैक्सिमम फॉर दिस सर्किट is given by 3.85. So these answers are for this circuit. वेरी गुड, दो लोगों ने आंसर बताए हैं। चलो, वेरी गुड, क्लियर। कोई डाउट है इस पूरे एक्सप्लेनेशन में किसी को? एनी डाउट इन दिस? कोई भी डाउट इस सर्किट में? ओके, नहीं, बहुत अच्छे। लेट्स टेक लास्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम द क्लीपर सर्किट्स, फिर हम क्लैंपर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टू सर्किट्स फॉर द क्लीपर। आई हैव दिस, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आजकल, है ना, ध्यान रखिए। दिस इज 6 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ओके, these are two diodes. ओके, थोड़ा और मैं इसको बड़ा बनाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सिक्स पाई साइन ऑफ ओमेगा टी। These are two diodes. This value is 10 kilo ohm. This value is 10 kilo ohm. This value is 20 kilo ohm. This is diode D1. This is diode D2. And this terminal is A. This terminal is B. And we are interested in this plus minus VAB. VAB कितना होगा? VAB is VA minus VB. तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ VAB। VAB का एवरेज वैल्यू कितना होगा फॉर दिस सर्किट, है ना। डायोड D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड, इनपुट इज व्हाट? 6 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी। सो व्हाट इज गिवन? D1 and D2 are ideal diodes. ट्राई दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप है कि आप ये पता करें कि किस कंडीशन के लिए डायोड ऑन होगा, किस कंडीशन के लिए डायोड ऑफ होगा। फिर आप VA VB की वैल्यू को निकालें, उसको ड्रॉ करें और फिर इसका एवरेज निकालें। दिस इज द प्रोसीजर। मैं आपको देता हूं 5 मिनट का टाइम, करें इसको।
Okay. Okay, let's start. How to approach this problem? क्या किया जाए, देखें जरा कि let's replace this diodes by open circuit. दोनों डायोड को मैं रिप्लेस कर देता हूं ओपन सर्किट से. सो दिस इज 10 किलो ओम, this is 10 kilo ohm, this is also 10 kilo ohm, and we are having two diodes, so I can replace these diodes by open circuit. दोनों डायोड को हमने क्या कर दिया, we have replaced it by open circuit. ओपन सर्किट से हमने इनको रिप्लेस कर दिया. फाइन. नाउ दिस इज Vp1, this is Vn1, this is Vp2, this is Vn2. Okay, for second diode this terminal is Vn2 and this is Vp2. अब जरा देखें, if and I am taking this 6 pi sine of omega t as a Vi, so can I say if this is reference, this whole potential is Vi. ये पूरा potential कितना होगा, Vi, this is Vi, this is Vi. So we can say Vp1 equal to Vn2 is equivalent to Vi for the circuit. Vp1 and Vn2 are at Vi potential. और यहाँ एक क्लोज लूप तो बनता है, बट देर इज नो सोर्स इनसाइड द सर्किट लूप. सो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो, क्योंकि कोई क्लोज लूप तो है पर कोई सोर्स तो अवेलेबल नहीं, सोर्स अवेलेबल नहीं, इट्स जस्ट अ ट्रैप ऑफ रेजिस्टेंस. सो व्हाट आई कैन से, Vn1 इक्वल टू Vp2 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू जीरो. यहां भी पोटेंशियल जीरो होगा, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा. Now D1 is on when Vp1 minus Vn1 is greater than 0. What is Vp1? Vi. What is Vn1? 0. When Vi is greater than 0, D1 is on. And D2 on कब होगा? When Vp2 which is 0 minus Vn2 minus Vi, this should be greater than 0. और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो व्हाट आई शुड से, Vi लेस देन जीरो. तो हमारे पास दो क्लियर कंडीशन आ गई कि जब Vi का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो डायोड D1 ऑन होगा, और जब Vi का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो D2 ऑन होगा. चलो अब लगाते हैं इसके ऊपर फर्स्ट केस. व्हाट इज फर्स्ट केस, व्हेन Vi इज ग्रेटर देन जीरो, कौन सा डायोड ऑन है, D1 डायोड इज ऑन. जब Vi का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो D1 इज ऑन, और D1 ऑन है तो देखो ये लगा दिया मैंने D1 ऑन. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे हाँ या ना, यहां तक के एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो, फाइन.
तो व्हेन vi इज ग्रेटर देन 0 d1 इज ऑन। अब देखें जरा कैलकुलेशन करने के तरीके कि इफ दिस इज vi दिस इज ऑल्सो vi और ये भी कितना होगा vi होगा। करेक्ट है। तो आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालना था, तो है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि va कितने पोटेंशियल पे आया, वी कैन से va इज अवेलेबल एट 10 वोल्ट, सॉरी va इज अवेलेबल एट vi, कि ये va का जो वैल्यू होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू vi। एंड व्हाट इज vb, तो आप बोल सकते हो कि vb पोटेंशियल कितना होगा, कि यहां से करंट कितना बनता है, सपोज ये रेफरेंस है तो यहां से रेफरेंस के बीच में करंट बनता है, इस करंट को मैं लिख देता हूं लेट से IB, और ये है VB। सो कैन आई से IB इज नथिंग बट VI डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 20K। तो बताओ VB का वैल्यू कितना होगा, VB इज नथिंग बट IB into 10K। So we can say VB is equivalent to IB by 20 into 10 is VI by 20। तो VB का वैल्यू भी अवेलेबल है, VA का वैल्यू भी अवेलेबल है। आई कैन से आई एम इंटरेस्टेड इन VAB, so VAB is VA minus VB and VA is VI of t, VB is minus of VI by 2, है ना, not 20, it's a 2। तो what is answer for this question, VIT divided by 2। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जब VI का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो VAB का वैल्यू कितना हुआ, VIT by 2। बहुत अच्छे। अब आंसर निकाल लेते हैं हम सेकेंड हाफ साइकिल के लिए, और पुराना कैलकुलेशन को मैं इलिमिनेट कर देता हूं, इसको हटा 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 देता हूं। सेकेंड कैलकुलेशन इज फॉर VIT लेस देन 0, which diode will conduct, D2 will be on, and if D2 conduct you can replace this by short circuit। और जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, व्हाट यू कैन से, दिस पोटेंशियल इज ए शॉर्ट पोटेंशियल, तो ये यहां से कहां आ जाएगा, यहां, और ये टर्मिनल कौन सा था, VB। सो इन दिस टाइम VB इज इक्विवेलेंट टू VI ऑफ t। तो यहां से करंट कितना बनेगा, इस बार करंट बनेगा IB यहां से ग्राउंड के बीच में। सो यू कैन से ओके, वेट 1 मिनट, आई मेड मिस्टेक, थोड़ा सा वैल्यू गलत ले लिया है। ये जो रेजिस्टेंस था दिस रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम। अगर ये रेजिस्टेंस 20 किलो ओम है तो व्हाट आई कैन से, दिस करंट इज, इसको मैं कर देता हूं, है ना, दिस करंट विल बी VA by 30, VI by 30 is IB, पुराना वाला IB। तो VB का वैल्यू कितना मिलेगा, 2/3 of VI। So VAB is what, VIT minus 2/3 of VIT, which is VIT divided by 3। कुछ नहीं, वो 20 की 10 की जगह 20 ले लेना, हो जाएगा काम। नाउ सेकेंड केस में तो करेक्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस पोटेंशियल इज VB। तो IB का वैल्यू कितना होगा, आई कैन से IB इज इक्विवेलेंट टू VB minus 0/20, VB which is VI divided by 20, और VA के वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन से VA is equivalent to what, VI by 20, current multiplied by resistance is 10K, so I can say this is VI by 2। तो VAB is given by VA which is VI by 2 and VB which is minus VIT। So what is answer, VIT by 2 minus। तो ये मेरे पास दोनों कंडीशन में आउटपुट आया, कितना कितना,
एक आउटपुट आया VIT/3 जब V इनपुट पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो VIT/-3। अब जरा देखें कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। व्हाट इज इनपुट, हम देखें तो व्हाट इज इनपुट फॉर दिस सर्किट। एक साइकिल के लिए तो इनपुट इतना ही होगा और एवरेज निकालने के लिए एक साइकिल की रिक्वायरमेंट है 6 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी। सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी, 6 पाई माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 6 पाई। ये क्या है, दिस इज इनपुट। अब आपसे क्या बोला है कि फाइंड द आउटपुट, तो आउटपुट कितना होगा VIT/3, तो मैक्सिमम वैल्यू है 6 पाई, तो 6 पाई का मैक्स डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 2 पाई, तो आउटपुट विल बी दिस। सिक्स पाई डिवाइडेड बाय 3। नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में वैल्यू कितनी है -6 पाई, -6/2 इज -3 पाई, और -3 पाई में एक और माइनस किया तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, एंड इन दिस रीजन व्हाट विल बी द आंसर, दिस, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई। अब आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, किस वेवफॉर्म का, आउटपुट वेवफॉर्म का। दिस रेड कलर इज आउटपुट वेवफॉर्म, है ना। So can I say 6 pi by 3 is 2 pi. So total answer is 1 over 2 pi integral of 0 to pi 3 pi sine of omega t d omega t plus pi to 2 pi, ये कितना आया था 2, and this is 3 pi sine of omega t d of omega t। आपको पता है that this integral pi to 2 pi और 0 to pi sin थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to pi और पाई टू 2 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है ना, बिकॉज इट्स कॉस थीटा, कॉस 0, कॉस पाई इज -1 तो 2 हो जाता है वो। सो दिस इज 1 over 2 पाई, यहां से 2 पाई कॉमन निकाला, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल 0 to 2 पाई इज 2 प्लस 3 पाई इज कॉमन फ्रॉम हियर, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम पाई टू 2 पाई इज अगेन 2, सो यू कैन से this is 6, this is 4, 10 pi divided by pi, 10 pi divided by 2 pi is 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 5 वोल्ट इज एवरेज, है ना। और ये इसको एनालाइज करने का तरीका मतलब बहुत ही आसान, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, अदरवाइज आप यही सॉल्व कर सकते हो इसको। सो दिस इज द आइडिया फॉर द क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों को समझ में आया। हाँ जी, क्लियर है क्या, ये क्लियर है, इज इट क्लियर, बहुत अच्छे। एवरेज पे एक और क्वेश्चन ट्राई करो। आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन ऑन एवरेज, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है ना, थोड़ा जल्दी आंसर बताएं इसका। दिस इज द क्वेश्चन, द इनपुट इज दिस 8 वोल्ट, 8 वोल्ट minus 10 volt of course this is periodic waveform, and this is 0, this is t by 2, this is t, and so on the circuit, and this is v of I, it is given कि ये v of I है, किसी सर्किट का इनपुट है ये, और सर्किट क्या है, सर्किट ये है, this is vi,
then this is 50 ohm resistance, this is 50 ohm resistance, and diode is ideal. This is V output. So we are interested in average value of V output. V output का average value कितना होगा? This is the question. जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन को. एवरेज वैल्यू ऑफ वी आउटपुट गेट 2019 में पूछा है ना, और बड़ा आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन. Okay, -3 volt. Very good. How we will approach this question? We will just replace this diode by open circuit. This is Vn. This is Vp. है ना, डायोड ऐसे ही लगा था. Now Vn और Vp का वैल्यू निकालें. So this is connected to ground. So Vn is equivalent to what? Vi. Vn is equivalent to Vi. And what is value of Vp? कि यहां से अगर करंट बनाए इस सर्किट में, करंट इज आई. सो व्हाट इज आई? आई इज इक्वलेंट टू Vi डिवाइडेड बाय 100. 50 ओम और 50 ओम सीरीज में है. सो व्हाट वी कैन से, Vp इज नथिंग बट आई इंटू 50. करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू Vp, और Vp इज इक्वलेंट टू Vi बाय 100 इंटू 50. सो कितना हो जाएगा? Vi बाई 2. या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दिस इज वोल्टेज डिवीजन. Vi अगर टोटल अप्लाइड वोल्टेज है तो आधा इसको मिलेगा और आधा 50 को मिलेगा. Vi बाई 2 दोनों को मिल जाएगा. सो Vp इज इक्वलेंट टू Vi बाई 2. ओके, सो आई कैन से Vp माइनस Vn
should be greater than 0. What is Vp? Vi by 2 minus Vi should be greater than 0. या मैं ऐसा बोलूं Vi minus Vi by 2 should be greater than 0. Means Vi लेस देन 0 पे डायोड ऑन है और Vi ग्रेटर देन 0 पे डायोड कैसा है? ऑफ है. और देखो कितनी आसान बात है कि इफ डायोड इज ऑफ, है ना, ग्रेटर देन 0 पे डायोड ऑफ है, तो आउटपुट कितना मिलेगा? आउटपुट आधा मिलेगा. ये निकाला तो है कि जब डायोड ऑफ है तब आउटपुट कितना आ रहा है? जितना Vp है उतना ही आउटपुट है, मींस हाफ. तो डायोड जब ऑफ कब है? ग्रेटर देन 0 पे. V इनपुट ग्रेटर देन 0 पे, तो आउटपुट हो जाएगा हाफ. सो आई कैन से, अगर मैं आउटपुट ड्रॉ करूं तो आउटपुट कितना हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू के लिए हाफ. कि अगर इनपुट 4 पे जाएगा तो 8 पे जाएगा, तो ये कितने वोल्ट पे रहेगा? 4 वोल्ट पे. फॉर नेगेटिव वैल्यू व्हेन डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 0, तो जितना V इनपुट है उतना ही कितना होगा? V आउटपुट. सो फॉर नेगेटिव वैल्यू V output is same as V input. Now, what is idea for average value? Average value of V output is area under the curve divided by time period. So area is what? 4 into T by 2. This is minus 10 into T by 2 divided by T. T and T cancel. So this is 2 minus 5. Minus 3 volt is correct answer. तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ? -3 वोल्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बताएं जरा एक बार, क्लियर हुआ क्या सभी को? इज इट क्लियर? हाँ जी, क्या ये क्लियर है? बहुत अच्छे. डाउट आप पूछ सकते हैं बीच में भी अनम्यूट करके, है ना. जहां भी आपको परेशानी हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. नाउ वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लिपर सर्किट, है ना. दिस क्वेश्चन इज स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्शन. सर्किट इज गिवन. Vi, this is plus minus V, this is 1 ohm, this is connected to ground, this is 1 ohm, this is 1 ampere. और ये जो V पोटेंशियल है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना. आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दिस V. इस V का वैल्यू कितना है? एंड दिस आर ऑप्शंस. मिनिमम ऑफ Vi एंड 1. दिस इज मैक्सिमम ऑफ Vi एंड 1. नेक्स्ट ऑप्शन इज मिनिमम ऑफ minus Vi and 1 and V equal to maximum of minus Vi and 1. What is Vi and 1? जैसे मैं से बोला कि minimum of Vi and 1, so let's say Vi is 2 and this is 1, तो आंसर will be 1, कि दोनों में से जो मिनिमम है वो आउटपुट पे आ जाएगा. So find answer for this question. And diode D is ideal in nature. Diode D is ideal diode. Try this question.
Okay, this all questions were done in last time, so you have to tell me. Okay, okay, okay. So let's start with the clamper circuit. The next topic for the day is क्लैम्पर सर्किट. पिछली बार क्लैम्पर स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था? आई मिस्ड दैट नोट. सो प्लीज, क्लैम्पर स्टार्ट किया था या नहीं किया था? नो नो. ओके ओके. लेट्स स्टार्ट विद द क्लैम्पर सर्किट्स. क्लैम्पर सर्किट्स है ना. क्लैम्पिंग मीन्स टू शिफ्ट. Clamping means to shift. So what is meaning of clamper? Suppose this is a clamper circuit. And input to this clamper circuit is Vi sine of omega t, or let's say it's a Vm sine of omega t. This is input to this clamper. So there are two possibilities for output. Two possibilities are output is either output is Vm sine of Vm plus Vm sine of omega t, or minus Vm plus Vm sine of ओमेगा टी. ये आने वाले इनपुट को क्या करेगा? या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस Vm से शिफ्ट कर देगा या माइनस Vm से शिफ्ट कर देगा. And these two outputs are known as, let's say this is V01 and this is V02. So V01 is known as positive clamped circuit. And what is V02? V02 is negative clamped circuit. This circuit will be positive clamped or negative clamped. So what we will use in clamper? Clamper we will use diodes, energy storing element, capacitor, a resistor, and maybe you can use some DC sources. So these are requirements of clamper. और डीसी सोर्सेज यूज करेंगे तो दिस विल बी ए बायस्ड क्लैम्पर. तो क्या करेगा? आउटपुट को शिफ्ट कर देगा, या तो प्लस वीएम पे शिफ्ट कर देगा या माइनस वीएम पे शिफ्ट कर देगा इनपुट सिग्नल को. एंड दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज क्लैम्पर सर्किट्स, टू विच क्लैम्प्स द आउटपुट, है ना, किसी एक वैल्यू पे शिफ्ट कर देगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लैम्पर. सपोज आई हैव a very basic clamper, है ना. This is clamper circuit. This is Vi. This is one capacitor and this is diode. This is output voltage and this is capacitor C. Now how to analyze the clamper जरा देखते हैं, है ना.
तो सबसे पहले मैं इनपुट को डिफाइन कर लेता हूं। देखो, लेट्स से डिफाइन द इनपुट। दिस इज टी, और इसको ले लेता हूं मैं, है ना, Vm, this is minus Vm. So what is my input to the circuit? Vi is equivalent to Vm sine of omega t. Vi is equivalent to Vm sine of omega t. Now we are interested in two charging discharging. The first charging discharging is Vc और V आउटपुट दोनों ड्रॉ करना है। तो एक एक्सिस में मैं बना लेता हूं Vc और दूसरी एक्सिस पे बना लेता हूं मैं लेट से V आउटपुट, है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टू वेव फॉर्म्स कि Vc का चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है एंड व्हाट इज द आउटपुट अक्रॉस डायोड सर्किट्स। जरा देखें हाउ इट वर्क्स। लेट्स रिप्लेस दिस डायोड बाय ओपन सर्किट, है ना, ये टेस्ट लगाना पड़ेगा। सो आई कैन से दिस टर्मिनल इज Vp और दूसरा टर्मिनल कितना है, दूसरा टर्मिनल इज Vn। अब इनिशियली मैं बोल सकता हूं कि डायोड के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है, जीरो। द इनिशियल चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज across capacitor is zero, means Vc zero minus is equivalent to zero। इनिशियल कंडीशन जीरो है। तो जरा देखो, अगर मैंने यहां पोटेंशियल लिया है कितना, इफ आई एम टेकिंग दिस पोटेंशियल इज ए 0 वोल्ट, है ना, और इसी पोलरिटी के साथ मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं Vc को, ध्यान रखें। सो Vp का वैल्यू भी कितना हुआ, Vit। And what is value of Vc? Vn is equivalent to 0 volt because this is connected to 0 volt। ये Vit है, यहाँ potential drop 0, तो this whole line is at Vit। Can I say this diode will conduct when Vit minus 0 is greater than 0? तो ठीक है, Vit का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। चलो करवा देते हैं इसको कंडक्ट। तो ये मेरे पास वेवफॉर्म बनाता हूं मैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर साइकिल। हमारे पास कंडीशन आई थी कि इनपुट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और ये देखो जरा, ये इनपुट ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। दिस इनपुट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। तो डायोड कंडक्ट करेगा। अब डायोड कंडक्ट करेगा तो डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किटेड डायोड के अक्रॉस आउटपुट कितना होता है, द आउटपुट विल बी 0। तो आउटपुट तो 0 हो जाएगा। और इनपुट कैसा, ये Vc के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा होगा, यू कैन से कि अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहां एक हम केवीएल लगा देते हैं, तो माइनस ऑफ वी आई प्लस वीसी इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, Vc इक्वल टू वी आई। मतलब जिस वेराइटी में इनपुट चेंज होगा उसी वेराइटी में Vc के अक्रॉस पोटेंशियल भी चेंज होगा। आई कैन राइट दिस। ये कैसा गया था, 0 से Vm गया था, तो कैपेसिटर भी कहां से कहां चार्ज हो जाएगा, 0 से Vm तक चार्ज हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ,
हेलो, ये कहाँ से नेटवर्क गया था? मैंने स्टार्ट कर दिया था आउटपुट बनाना या नहीं किया था? एक बार जरा बताएं। हेलो। वीसी इक्वल टू वीएन तक आया। ओके ओके ओके। वीसी प्लॉटिंग, ओके। आप मैसेज कर दिया करें भाई, है ना? वेट ना करें, नहीं तो मैसेज कर दिया करें। आपने मैसेज नहीं किया मुझे। एनीवेज, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लेट्स सी। ओके, आने वाली सारी साइकिल्स के लिए ये डायोड कभी ओपन क्लोज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वीआईटी इज ग्रेटर देन वीएम। कि if this potential is VIT, this potential is VM, so output is what? VIT minus VM. For conduction of this diode, VIT minus VM should be greater than 0. Screen is not visible. Wait. Now screen is visible. Okay. If this potential is VIT, this is VM. So what is output? आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, उसके बाद इसको आउटपुट, इसको ये एनालाइज करने का तरीका है कि जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज हो जाए, फिर से आप इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रूल लिखो। तो देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रूल क्या होंगे इस बार। The rule is this potential is Vi, this potential is Vm, so I can say output is equivalent to Vi minus Vm from basic KVL. तो इसके पी टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आया? VIT माइनस Vm। और डायोड को ऑन होने के लिए VIT माइनस Vm शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी VIT का वैल्यू Vm से बड़ा होना चाहिए। नाउ किसी पीरियोडिक सिग्नल के लिए VIT का वैल्यू Vm से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? ये डायोड आने वाली साइकिल्स में कभी भी ऑन नहीं होगा। इफ दिस डायोड इज नॉट कंडक्टिंग फॉर एनी इनकमिंग साइकिल, तो मैं बोल सकता हूं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो ये कैपेसिटर कितने पोटेंशियल पे रहेगा? जितने से चार्ज हुआ था। तो Vm से चार्ज हुआ था, तो ये Vm पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज आउटपुट इन दिस केस? आउटपुट इन दिस केस इज VIT माइनस Vm। सो जो VIT पे आपका सिग्नल था, VIT माइनस Vm इज 0, 0 माइनस Vm इज माइनस Vm, माइनस Vm माइनस ऑफ Vm इज माइनस ऑफ 2Vm, और पूरा वेवफॉर्म कहां शिफ्ट हो जाएगा? माइनस Vm पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखें, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट वी आर शिफ्टिंग अवर वेवफॉर्म एट माइनस Vm। तो क्या डीसी शिफ्ट से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है? नहीं। अगर मेरे पास इनपुट था Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, and output is what? Minus Vi minus Vm plus Vm sine of omega t. So what is frequency of this signal? Again omega radian per second. So frequency is not changed for this signal. तो ये कौन सा क्लैंपर था? ये क्लैंपर को एनालाइज करने का तरीका था। द क्लैंपर इज, दिस इज द क्लैंपर। तो ध्यान रखें क्लैंपर को कैसे एनालाइज करेंगे। एंड दिस कैपेसिटर एज इंपॉर्टेंट रोल इन वोल्टेज मल्टीप्लायर और वोल्टेज डबलर सर्किट, वो भी लिखते हैं। पर आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया क्या? हाउ क्लैंपर वर्क्स? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? क्लैंपर की अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो, ओके। व्हाट इफ आई टेक आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर? अभी तो मैंने डायोड के अक्रॉस आउटपुट लिया था इन द सेम सर्किट।
अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लिया जाए तो दिस सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर, है ना। द नेक्स्ट सर्किट इज पीक डिटेक्टर सर्किट। वी कैन टेक आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर। जरा देखें, दिस इज वी आई, this is diode, and this is capacitor, and this is output voltage, V output. So this circuit is known as peak detector circuit. क्या करेगा, किसी इनपुट वेवफॉर्म के पीक को डिटेक्ट करेगा। चलो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। So I can say this is input, ये इनपुट है, and I am interested in VCT, I am interested in output। देखो कितना आउटपुट होगा। First, to analyze this circuit, I have to replace this diode by open circuit। ओपन से आपको आपने रिप्लेस कर दिया इसको। दिस पोटेंशियल इज Vp, दिस पोटेंशियल इज Vn। इनिशियली कितना वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस? इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस है 0 वोल्ट। सो Vi is equivalent to Vp and Vn is equivalent to 0 volt. So you can say Vi minus 0 is greater than 0, Vi should be greater than 0। ये डायोड कब ऑन होगा? जब Vi का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ। ठीक है, तो ये Vi का वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में ग्रेटर देन 0 ही है, तो कैपेसिटर हुआ चार्ज। और डायोड कैसा है? डायोड विल बी शॉर्ट सर्किट, और डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो यू कैन से you can apply the loop minus Vi plus V output equal to 0। So V output will be equivalent to V input। तो V input जा रहा है 0 से V maximum तक, तो V आउटपुट भी जाएगा 0 टू V maximum तक। अब अगली साइकिल के लिए देखें। अब इस कैपेसिटर के पास चार्ज हो चुका है कितना? Vm। ठीक है, अब एक बार कैपेसिटर चार्ज हुआ तो मुझे ऑन ऑफ करने के लिए फिर से देखना पड़ेगा इसको। अब क्या कहानी बनती है? दैट योर Vp is having potential Vi and your Vn is having potential Vm। So Vi minus Vm should be greater than 0 और Vi should be greater than Vm। क्या अभी आने वाली साइकिल्स में ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता मतलब डायोड फॉरएवर ऑफ, और फॉरएवर ऑफ मींस इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा, और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा तो आइडियली कितने वोल्टेज पे? Vm पे। तो ये फिक्स हो जाएगा कितने पे? Vm वोल्टेज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेवफॉर्म का जो पीक था वो V मैक्सिमम पे था, तो ये V मैक्सिमम तक चार्ज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दिस सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर सर्किट। दिस सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर सर्किट। ऐसा सर्किट जो किसी वेवफॉर्म के पीक को डिटेक्ट कर ले इज नोन एज पीक डिटेक्टर सर्किट। तो आप ध्यान रखें कि यहां भी जो ये सर्किट था ये पीक डिटेक्टर सर्किट ही था। देखो जरा, जब आपका आउटपुट Vm पे फिक्स हो गया तो जब आप कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे तो क्या देगा? ये पीक डिटेक्टर। एंड वेन एवर यू टेक आउटपुट अक्रॉस डायोड इट्स अ क्लैम्प्ड आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट होगा? क्लैम्प्ड आउटपुट होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक डिटेक्टर इज क्लियर, है ना। किसी वेवफॉर्म के पीक को डिटेक्ट करना। हाँ जी, इज इट क्लियर द आइडिया ऑफ पीक डिटेक्टर? पीक डिटेक्टर क्लियर हुआ क्या? यस, यस, वेरी गुड। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी, देखेंगे हम। नाउ लेट्स टेक
This is one circuit. Let's understand the working of peak detector. This is Vi and this is V output. Suppose input is this, है ना? This circuit is what? Peak detector circuit. How it works? This is time and this is Vi. So what I am saying, just draw the output of this circuit. ये ऐसा कोई इनपुट दिया है मैंने. And what I am saying, this is 1 volt. This is 0.5 volt. 2 volt. This is 3 volt. सपोज ये कोई दिया है आपको, है ना? अब देखो ये सर्किट कैसे वर्क करेगा जरा देखते हैं. हाउ पीक डिटेक्टर वर्क्स. क्या करेगा ये कि इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस 0 वोल्ट है और यहाँ VIT है. तो VIT ग्रेटर देन 0 पे डायोड विल कंडक्ट. डायोड कंडक्ट करेगा तो ये कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा. तो कब तक चार्ज होगा? मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा. तो व्हाट आई कैन से, इन दिस ड्यूरेशन डायोड कैसा हुआ? डायोड इज ऑन और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हो गया कितना? 1 वोल्ट. द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज 1 वोल्ट. देखो ये 1 वोल्ट तक चार्ज हो गया कैपेसिटर. सो कैपेसिटर इज एट 1 वोल्ट एंड दिस इज VIT. अब मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने के बाद क्या होगा? कैपेसिटर इज चार्ज टू 1 वोल्ट. अब जरा देखें, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट की बात की जाए, कि अब डायोड को ऑन होने के लिए क्या रूल लगेगा? Vi माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 या Vi शुड बी ग्रेटर देन 1. लेकिन क्या इस रीजन में Vi ग्रेटर देन 1 है? नहीं, लेस देन 1 है, क्योंकि ये तो 1 टू 0.5 तक है. इसका मतलब डायोड इज ओपन. और डायोड अगर ओपन हुआ तो इस कैपेसिटर के लिए डिस्चार्जिंग के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है. और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो ये कितने वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा? 1 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा, है ना? आउटपुट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो यू कैन से ये कितने पे फिक्स हो जाएगा? 1 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा. ठीक है, ये जो रेट से बना रहा हूं ये आउटपुट है. अब देखो, कंडीशन थी ऑन होने के लिए VIT ग्रेटर देन 1 और अब आया देखो VIT ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 जैसे ही हुआ ये डायोड फिर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट. डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अगेन दिस विल बी चार्ज अप टू द मैक्सिमम वैल्यू. ये मैक्सिमम वैल्यू से फिर चार्ज हो जाएगा और कितने वोल्ट पे आ गया? नाउ योर कैपेसिटर इज हैविंग पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट. ये 2 वोल्ट पोटेंशियल हो गया. अब आगे देखो, इस नेक्स्ट साइकिल में योर इनपुट इज लेस देन 2 वोल्ट. अब इनपुट अगर आपके पास लेस देन 2 वोल्ट है तो इन लेस देन 2 वोल्ट व्हाट आई कैन से, ये डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ होगा. और ऑफ होगा तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग के लिए अगेन कोई पाथ नहीं मिला. मींस व्हाट आई कैन से, द आउटपुट विल बी फिक्स एट 2 वोल्ट. ये आउटपुट कितने वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा? 2 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा, है ना? अगेन अब ऑन होने के लिए क्या कंडीशन है? ये देखो डायोड था मेरे पास कुछ ऐसा. अब ऑन होने के लिए क्या कंडीशन है? VIT माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 2. तो VIT शुड बी ग्रेटर देन 2. नाउ यू आर हैविंग पोटेंशियल VIT ग्रेटर देन 2. तो फिर क्या होगा? दिस डायोड विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो ये कहां तक चार्ज हो जाएगा? 3 वोल्ट तक. अगर ये 3 वोल्ट चार्ज हुआ और उसके बाद देखें, उसके बाद आने वाली सारी साइकिल के लिए क्या है? इसका वैल्यू कम है तो 3 वोल्ट पे कितना हो जाएगा? ये फिक्स हो जाएगा और दिस विल बी द आउटपुट. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पीक डिटेक्शन. तो ये जितनी भी फ्लैट लाइंस दिख रही हैं ये क्या बता रही हैं आपको? कि डायोड विल नॉट डिस्चार्ज, कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज अक्रॉस द सर्किट.
सो आई थिंक पीक डिटेक्टर इज क्लियर टू यू। किसी भी वेवफॉर्म का इनकमिंग सिग्नल का अगर आपको पीक डिटेक्ट करना है तो द सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर। और ये बहुत ही हाइपोथेटिकल अप्रोच है बिकॉज कैपेसिटर का कुछ लीकेज करंट होगा। इफ दिस इज कैपेसिटर देयर इज ए लीकेज करंट इन द कैपेसिटर। डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा बट यस द हाइपोथेटिकल सर्किट, या ऐसा मैं बोलूं कि आइडियल सर्किट कैसा है, तो दिस इज द आइडियल सर्किट। दिस इज द पॉइंट वेयर डायोड इज ऑफ, है ना। और ये वो रीजन है जब डायोड चार्ज हो रहा है, तो जब डायोड कैसा है, ऑन। दिस इज द रीजन वेयर डायोड इज ऑन। ये वो रीजन है जब डायोड कैसा है, ऑन। आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? द आइडिया ऑफ पीक डिटेक्टर सर्किट इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, वेरी गुड, क्लियर, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अच्छा, द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज कि जब भी सर्किट में कैपेसिटर्स लगे हों, है ना, देखो ये कैपेसिटर्स लगे हैं इसमें, तो आपको आउटपुट स्टडी स्टेट में मिलेगा, ट्रांजिएंट में आउटपुट नहीं मिलेगा। ये देखो आपको आउटपुट कब मिला है, जब हम वोल्टेज डबलर ट्रिपलर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यू कैन नॉट गेट आउटपुट इन 1 और 2 साइकिल्स। तो ये कौन सा आउटपुट है? क्लैंपर का आउटपुट आपको कब मिलता है? स्टडी स्टेट में मिलता है। ट्रांजिएंट में तो इसको जीरो आउटपुट मिला है, देखो आप, है ना। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में तो इसका आउटपुट कैसा मिला है? जीरो मिला है। सो दिस विल वर्क इन स्टडी स्टेट, है ना। द क्लीपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर कहां आउटपुट देंगे? दे विल प्रोड्यूस आउटपुट इन स्टडी स्टेट। चलो, नाउ लेट्स ड्रॉ वन मोर सर्किट टू explore the concept, and let's take this. This is VIT. दिस इज वन कैपेसिटर जो कि ब्रेकडाउन में नहीं जा रहा है ना, ना डायोड ब्रेकडाउन में जा रहा है। एंड दिस इज आउटपुट, एंड वी, है ना। आपको समझ में आएगा कि देखो ये ट्रांजिएंट में आपको आंसर नहीं देगा, ये स्टडी स्टेट में आंसर देगा। लेट्स टेक वी आई इक्वल टू दिस। This is Vi. So this is VCT and this is V output. Just draw this. इसके आउटपुट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉ करना है। मींस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। दिस इज VCT एंड V आउट ऑफ T। ये दो ड्रॉ करना है मुझे, जल्दी करें। और देखिए आप, है ना, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल के लिए ड्रॉ करें, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा इसका। जस्ट ड्रॉ दिस। इफ यू टेक आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर, इस बार आपको कैसा देगा वो? नेगेटिव पीक डिटेक्टर, -Vm को प्रेडिक्ट कर लेगा। जस्ट अपनी कॉपी में ड्रॉ करें द आउटपुट फॉर दिस सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे ये वर्क करता है।
Okay, how it will work? Let's see. You can take your diode as a open. और diode open लिया तो this is what? Vn. This is what? Vp. So what is initial charge across capacitor? 0. So you can say Vn is equivalent to Vi. And Vp is what? Vp is 0 because I am taking this as a reference 0 volt. So what is idea for diode conduction? 0 minus Vi should be greater than 0 और Vi should be less than 0. ये डायोड कब कंडक्ट करेगा? जब Vi का वैल्यू लेस देन 0 हुआ. तब तक डायोड कैसा है? ओपन. और जब तक डायोड ओपन है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज आएगा? कैपेसिटर चार्ज होगा क्या? नहीं. कैपेसिटर के अक्रॉस जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक कोई चार्ज नहीं होगा. हमने वैसे भी पढ़ा है कि if current is 0 the potential drop across every passive element is equivalent to 0. तो पहली हाफ साइकिल में तो इनपुट पूरा कैसा है? पहली हाफ साइकिल में इनपुट है पॉजिटिव. तो कैपेसिटर के क्रॉस तो चार्जिंग हुई नहीं. तो कैपेसिटर कितने वोल्ट पे रहेगा? द कैपेसिटर इज अवेलेबल एट 0. क्योंकि ये डायोड कैसा रहा? ओपन रहा. और ओपन रहा तो इसके क्रॉस नो करंट अक्रॉस कैपेसिटर, नो करंट इन द लूप. दैट्स व्हाई द कैपेसिटर इज एट 0 वोल्ट. एंड व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू V input. You can say when V input is equivalent to V output for the circuit. Now, अब सेकेंड क्वार्टर साइकिल की बात करते हैं. थर्ड क्वार्टर साइकिल इन दिस रेंज, इस रेंज में क्या हुआ है? द इनपुट इज नेगेटिव. ये इनपुट कैसा हुआ है? नेगेटिव. और इनपुट नेगेटिव हुआ है इसका मतलब डायोड कैसा रहेगा? ऑन. और डायोड ऑन रहेगा तो आउटपुट का वैल्यू कितना हो जाएगा? द आउटपुट का वैल्यू इज 0. और डायोड ऑन रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा इनपुट वेरी कर रहा है वैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा. तो इनपुट जा रहा है 0 से माइनस Vm तक, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी कहां जाएगा? 0 टू माइनस ऑफ Vm. Why I am writing this? Because if diode is on and this is Vc, so what is idea? Minus Vi plus Vc is equivalent to 0. Vc is equivalent to Vi. तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही Vc होगा. तो इनपुट जा रहा है 0 से माइनस Vm, तो आउटपुट भी जाएगा 0 टू माइनस Vm. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वार्टर साइकिल. फोर्थ क्वार्टर साइकिल में क्या होने वाला है? व्हाट आई कैन से कि अब आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है. यू हैव वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? माइनस Vm. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? डायोड को ऑन ऑफ करने की कंडीशन क्या हो जाएंगे? Vi प्लस Vm is equivalent to Vn and Vp is equivalent to 0. So can I say minus times of Vi plus Vm should be greater than 0 या Vi plus Vm should be less than 0 और Vi should be less than माइनस ऑफ Vm. क्या इनपुट का वैल्यू माइनस Vm से भी कम हो सकता है? आने वाली साइकिल में कभी भी, आने वाले साइकिल में कभी भी ये वैल्यू कम नहीं हो सकता. Vm से कम तो जा ही नहीं सकता. Vm अगर -10 है तो ये -11 हो ही नहीं सकता. अगर नहीं हो सकता तो ये डायोड आने वाली सारी साइकिल्स के लिए कैसा होगा? यू कैन से दिस डायोड विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट. और अगर ये डायोड ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी VIT प्लस Vm. है ना? यहां लगा दो एक लूप. माइनस Vi माइनस Vm प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0. है ना? यहां लगाया एक लूप. सो यू कैन से V आउटपुट इक्वल टू Vi प्लस Vm. So what you can say? V output is, now your output is shifted by Vm. आउटपुट को कितने से शिफ्ट कर दिया आपने? Vm से शिफ्ट कर दिया. तो इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें Vm करना है. Vm करना है तो ये पॉइंट मिलेगा आपको 0 पे. और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा? कैपेसिटर, डायोड ओपन है तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का कोई पाथ अवेलेबल नहीं है. पाथ अवेलेबल नहीं है तो ये फिक्स हो जाएगा कितने पे?
माइनस वीएम पे फिक्स हो जाएगा। एंड जितना भी इनपुट आएगा इस सेकेंड साइकिल के बाद उसमें सभी में वीएम ऐड करना है। तो माइनस वीएम में आपने वीएम ऐड किया तो कितना आया, 0। फिर 0 में ऐड किया तो कितना आया, वीएम। फिर वीएम में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 वीएम। दिस इज 2 वीएम। फिर 0 पे ऐड करोगे तो कितना आएगा, वीएम। फिर माइनस वीएम पे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0। सो यू कैन से दिस विल बी द योर आउटपुट। सो अगेन दिस सर्किट इज नॉट वर्किंग इन ट्रांजिएंट, है ना। फर्स्ट 2-3 साइकिल में वर्क नहीं करेगा ये, ट्रांजिएंट में वर्क नहीं करता ये। कहां क्लैंपर का आउटपुट कहां मिलेगा आपको, यू विल गेट आउटपुट ऑफ क्लैंपर इन स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में इसका आउटपुट मिलेगा आपको, है ना, इनिशियल साइकिल्स के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज वर्किंग ऑफ बेसिक क्लैंपर सर्किट। ठीक है, और इसका आउटपुट कितना आया देखिए जरा। द आउटपुट इज नथिंग बट वीएम प्लस वीआई। एंड व्हाट इज वीआई, वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू से आप इसको क्या कर देंगे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ क्लैंपर। सो क्लैंपर वर्क्स इन स्टडी स्टेट। तो ये मैंने 2 बेसिक क्लैंपर्स बताए हैं आपको। वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया अप टू बायस्ड क्लैंपर, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो हम अगली क्लास में हम बात करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, वोल्टेज डबलर सर्किट्स के बारे में। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ क्लैंपर। इसमें किसी को कोई परेशानी, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन क्लैंपर सर्किट? कोई डाउट नहीं है ना। तो क्लैंपर, एक बात ध्यान रखें आप कि whenever we take output across capacitor, the circuit is peak detector circuit, और whenever we take output across diode, it's a clamper circuit. तो क्लैंपर क्या करेगा, आउटपुट को, जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, लेट्स रिविजिट दैट स्लाइड। What is the basic definition of clamper? This is basic definition of clamper. That your input is what, your output is what? The clamping output is this. Vm sin of omega t, Vm plus Vm sin of omega t और माइनस Vm plus Vm sin of omega t। या तो ऊपर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा किसी डीसी वैल्यू के साथ, है ना। और फिर हमने 2 क्लैंपर सर्किट पढ़े, और फिर दैट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि whenever you take output across capacitor in clamper circuit, this capacitor will act as a पीक डिटेक्टर ऑफ द सर्किट। किसी भी रैंडम वेवफॉर्म का अगर आपको पीक डिटेक्ट करना है, ये रैंडम वेवफॉर्म है, इस रैंडम वेवफॉर्म में अगर आपको पीक डिटेक्ट करना है तो यू हैव टू यूज अ पीक डिटेक्टर सर्किट, है ना। जिसका प्रैक्टिकल सर्किट भी आइडियल के बहुत, है ना, आसपास कई सर्किट है। एंड फिर हमने देखा कि द यू कैन टेक आउटपुट ऑफ क्लैंपर सर्किट इन स्टडी स्टेट, है ना। ट्रांजिएंट में तो आपको कुछ भी रैंडम आउटपुट मिलेगा। और अगेन यहां भी देखेंगे, अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं तो इट्स नेगेटिव पीक डिटेक्टर। तो पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करेगा और नेगेटिव क्लैंपर में नेगेटिव पीक को डिटेक्ट करेगा। एंड द सेम आइडिया आई विल यूज फॉर वोल्टेज डबलर सर्किट। तो वोल्टेज डबलर भी इसी टाइप का कुछ सर्किट है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे क्लैंपर। तो क्लैंपर क्या करेगा कि Vm साइन ऑफ ओमेगा टी को Vm प्लस Vm साइन ऑफ ओमेगा टी में दे देगा, मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 2Vm। देन वी विल यूज अ पीक डिटेक्टर। तो 2Vm जिसका हाईएस्ट वैल्यू, उसका पीक भी कितना होगा, 2Am। तो वो कैपेसिटर 2Vm तक चार्ज होगा और उसके बाद फिक्स हो जाएगा। तो दिस इज आइडिया ऑफ वोल्टेज डबलर और वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, क्लियर हुआ? बताएं, इज इट क्लियर? ठीक है, आपका और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी डाउट, या फिर हम कल स्टार्ट करेंगे बायस्ड क्लैंपर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। टुमारो वी विल स्टार्ट बायस्ड क्लैंपर और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। चलो, एनी डाउट, यस और नो? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? एनी डाउट?
ओके, नो डाउट। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। नो डाउट, ओके, कल मिलते हैं। अच्छा, टाइमिंग का आप बताएं, एक क्लास हमारी मिस है, क्या वो संडे को रखी जा सकती है क्लास? कैन वी हैव